Hello students, I hope you all are fine at your home and enjoying your video classes. So to continue with it, we are here with another class of science for class 5th. Students, in previous classes we have studied chapter number 1 of your science, that was reproduction in plant. We have studied reproduction procedure in plants as well as germination, how it occur and what is germination. We were also aware of them. Next, we also studied the dispersal, and what is dispersal, that we have concluded and that we have discussed in previous classes, and various dispersal agent also we studied, as well as various part of the plant that are edible and edible and not edible parts also we studied in previous class, and different kind of edible part that plants store their food, that parts we eat, that is called edible part. And we also studied agricultural crops, which are agricultural crops, kharif crop, rabi crops, and various agricultural practices also we have. Today we will gonna complete book exercise of your chapter 1. So get ready with the pencil and eraser. We will continue for the book exercise, and I have given you the homework to complete the book exercise in previous class. If you have completed that roughly, so you just need to verify with my answer. If you find that is was correct, so let it be there. First we will study the MCQ. First MCQ is the outer covering of the seed is called. So he is saying that the book is saying outer cover of the seed, सीड का आउट कवर तो क्या कहलाता है, हमने क्लास में स्टडी किया था, दैट इज सीड कोट. के स्टूडेंट्स, यू जस्ट नीड टू मेक हियर अ चेक मार्क, दैट इज द राइट आंसर इज सीड कोट. द नेक्स्ट वन इज रोज एंड hibiscus can grow new plants from there. Rose and hibiscus, how they reproduce a new plant? We have studied the rose and the hibiscus plant grow from their stems. So you need to check mark on the option of stems. Okay. Then third one is coconut are dispersed through. Disperse means हमने पता करा था जो seed अपने पेरेंट प्लांट से अलग होते हैं वो डिस्पर्सल का एक प्रोसीजर है. सो ही इज आस्किंग अस, द बुक इज आस्किंग अस हाउ कोकोनट disperse. Coconut is also a kind of seed of its parent plant, so it disperses by water. Why water? Because insect can't carry the huge coconut seed and wind also can't fly the huge coconut seed. That's why water is the correct answer. So next one is the continuous required for seeds to germinate. सीड्स यानी बीज, जर्मिनेट यानी बीज का बनना. तो कंटिन्यूस क्या क्या ज़रूरत है जिससे बीज जर्मिनेट हो सके. सो वी हैव स्टडीड दैट सनलाइट एंड वाटर ऑल्सो नेसेसरी, बट अलॉन्ग विद दैट वी नीड वार्मथ ऑल्सो. सो दिस वन आंसर वुड बी राइट आंसर, दैट वाज आंसर बी, एयर वाटर एंड वार्मथ. हवा, पानी एंड गर्मी, प्रॉपर टेम्परेचर. Okay, so that was your MCQ section. Complete it with the students. Next we will go for the fill up. So first fill up we will have a look. Dandelion seeds are dispersed by. Dandelion seeds कौन से होते हैं? जो seeds हल्के होते हैं, जैसे कॉटन के सीड्स होते हैं, तो वो डिस्पर्स होता है, अपने पेरेंट प्लांट से अलग होता है बाय यानी के द्वारा. तो राइट आंसर you will write here in fill up, that is wind, यानी हवा से वो डिस्पर्स होते हैं डैंडेलियन सीड. स्टूडेंट्स, कंप्लीट द फर्स्ट fill up. Next fill up number 2 is a seed needs good soil which is rich in. A seed which needs
गुड सॉइल मतलब ऐसा सीड जिसे गुड सॉइल चाहिए, जो रिच हो यानी जिसमें प्रचुर मात्रा में हो, क्या हो। सो राइट आंसर इज न्यूट्रिशन। यू विल डू न्यूट्रिशन इज द इन द सेकेंड फिलअप। ओके स्टूडेंट्स, राइट डाउन द सेकेंड फिलअप इन योर बुक। Students, fill up number 3 is barley and gram are dash crops. So barley and grams are rabi crops. Number 4 is molds and mushroom reproduce through, यानी molds और जो mushroom होते हैं कहाँ से reproduce करते हैं, तो spores से, यानी जो उनके प्लांट से छोटे छोटे दाने गिरते हैं उनसे वो रिप्रोड्यूस करते हैं। ओके, तो ये आपका फिलअप सेक्शन कंप्लीट हो गया। इस आंसर को आप नोट डाउन करिए केयरफुली बुक में। ओके स्टूडेंट्स, फिलअप हैज़ बीन कंप्लीटेड। नाउ वी विल डू ट्रू फॉल्स सेक्शन। सो फर्स्ट ट्रू फॉल इज, फर्स्ट सेंटेंस इज फर्टिलाइज़र डैमेज द सॉइल। तो फर्टिलाइज़र जो है वो डैमेज करते हैं क्या सॉइल को। सो फॉल्स, फर्टिलाइजर सॉइल को डैमेज नहीं करती है, बल्कि इज अ सीड नीड्स द राइट अमाउंट ऑफ एयर, वाटर एंड वार्मथ टू जर्मिनेट। ये हमने एमसीक्यू सेक्शन में भी देखा है। तो सीड को जर्मिनेट करने के लिए ये तीनों राइट अमाउंट में चाहिए, दैट्स व्हाई इट वुड बी ट्रू। नंबर 3 इज फोर्सेस ऑफ नेचर लाइक विंड, वाटर एंड एनिमल ऑल्सो हेल्प इन डिस्पर्सल ऑफ सीड। यानी कि सीड के डिस्पर्सल में नेचर की फोर्सेस जैसे विंड, वाटर, एनिमल भी अपना हेल्प करते हैं। सो दैट आंसर इज ट्रू। ओके, दैट्स व्हाई आई हैव मेंशन्ड हियर टू फॉर यू, दैट यू कैन राइट डाउन, यू कैन नोट द आंसर इन योर बुक। सो नोट द आंसर। नेक्स्ट नंबर 4 इज वीड्स डू नॉट कम्पीट विद द क्रॉप ऑफ न्यूट्रिशन। सो इसका मीनिंग आपको समझना थोड़ा ट्रिकी है, और आई होप आप लोगों ने ये आंसर नहीं किया होगा या छोड़ दिया होगा। तो इसका आंसर ऐसे समझेंगे, कम्पीट मतलब प्रतिस्पर्धा करना, कंपटीशन से कम्पीट बना है। तो इसका हिंदी कैसे बनेगा, इसको समझेंगे ऐसे। वीड्स जो अननेसेसरी प्लांट्स होते हैं क्रॉप के पास, वो कम्पीट नहीं करते, यानी कि कंपटीशन नहीं करते न्यूट्रिशन के लिए क्रॉप्स के साथ। यानी कि क्रॉप से वो जितना न्यूट्रिशन क्रॉप लेता है उतना ही वीड्स भी नहीं लेते, ऐसा लिखा है। डू नॉट लिखा है मतलब नहीं लेते, लेकिन ये गलत है। वो उतना ही न्यूट्रिशन लेते हैं जितना क्रॉप्स लेता है, इसीलिए वीड्स को हमें रिमूव करना पड़ता है। सो राइट आंसर विल बी फॉल्स। ओके, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। स्टूडेंट्स, हमने बुक की एक्सरसाइज सब फिल कर ली है, हमने देख लिया है, जो भी हमने फिल किया है वो हमने चेक कर लिया है। आप इन एक्सरसाइज को अपने नोटबुक में, माफ़ कीजिए नोटबुक में नहीं, बुक में कंप्लीट करिए, फिल करिए। एंड आप होमवर्क में ये करिए, इसके क्वेश्चन आंसर जो है 5 क्वेश्चन आंसर के क्वेश्चन के आंसर आप फाइंड करिए रफली। देन आफ्टर इन नेक्स्ट क्लास आई विल टेल यू द राइट आंसर, देन यू विल मेक इट फेयर। बट नाउ जस्ट डू इट फॉर द रफ ओनली।